Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experienced. And today we have among us a very special guest, Chandra from IBM. Hello Chandra, welcome to Placement Buddies. Hi Saleh, thank you so much for inviting me here. Yeah, it's my pleasure Chandra. Chandra, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ. Okay, hi everyone. I'm Chandra Dangwal. I'm from Uttarakhand. Basically, I completed my graduation from Bachelor's of Computer Application. Then I did some internship and all. And currently now I'm working with IBM as a associate technical engineer. Recently, I joined IBM on the 14th of June, and this is my first job. Yeah. Okay, so guys, let me tell you, मैं और चंद्रा YouTube के थ्रू ही मिले थे. I got to know about her from YouTube only. Then I approached her on LinkedIn and she was kind enough to appear in our channel Placement Buddies. So I'm extremely thankful to you Chandra and I hope हमारा ये episode बहुत ही अच्छा हो. Yeah, sure. Why not? Actually, it's my pleasure to work with you and give my experience, share my experience with your audience as well. So thank you so much for connecting with me. Yeah. चंद्रा, अपने जर्नी के बारे में हमको हमारे ऑडियंस को बताओ. आपका कॉलेज से स्टार्ट होके आईबीएम तक का जो जर्नी है, बीच में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं. Okay, if I'm talking about my journey, तो वो थोड़ी सी hard working and थोड़ी नहीं ज़्यादा hard working and थोड़ा hectic थी because I completed my graduation from Bachelor's of Computer Application and I got the placement much placement 4 and 5 in my college. Due to COVID वो सारे मुझे छोड़ने पड़े. Then after that I went to in between that I have done 2 internship, one from Delhi, then second is from Bangalore, but that was virtual internship क्योंकि उस समय खाली बैठना I don't think so कि सही था. So I completed my 2 internship. Then I placed in Tech Mahindra as a technical role, but because of some issues, people placed us for the non-technical and said कि first you have to do for the BPO work, and after 3 to 4 months we will shift to in technical. So I remember ये बात पिछले साल की है, September October के टाइम की. So I just joined Tech Mahindra and worked 3 months as a associate customer executive. And after that I planned कि नहीं ये enough नहीं है. So I went Bangalore in the starting of 2021 January. And I remember मेरी जर्नी में वो मेरे लाइफ का सबसे toughest decision था जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो without having any connections and friends. And वहाँ चले गई थी. Then I searched for, actually मैंने वहाँ जाने से पहले सर्च किया था करना क्या. Actually I have a plan और अब बैकअप प्लान की जॉब तो चाहिए. सेकंड थिंग इज कि किसी चीज पे एक्चुअली पहले आपको डिपेंड होना पड़ता है. सो आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट दैट्स कॉल्ड जे स्पाइडर. और उससे पहले एक्चुअली यूट्यूब पे मैं भी वीडियोस बना रही थी. सो दैट टाइम आई वाज कि कुछ हो नहीं रहा है एंड माय कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड दैट टाइम. अभी इट इज ओके, आई कैन कम्युनिकेट, आई मुझे हेजिटेशन नहीं होता, नर्वसनेस नहीं होती, बट दैट टाइम वाज वेरी क्रिटिकल फॉर मी. सो आई वेंट बैंगलोर, आई स्टार्टेड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग फ्रॉम जे स्पाइडर एंड instead of that I parallelly make the videos for my channel as well. तो वहाँ मैं day to day रोज अपलोड करती थी whatever I felt. and वो जर्नी बहुत ज्यादा हेक्टिक था. और क्योंकि ऐसा होता है जब आप किसी दूसरी जगह जाते हो, पहले तो आपके प्लेस का कोई नहीं होता, फिर जॉब का इतना टेंशन होता है. बट I tried my level best और at last एक रिजेक्शन हुआ था मुझे. I remember that bitwise. and उस रिजेक्शन के बाद I cried a lot for 1.5 week. 1.5 week में पूरे शॉक में थी कि मेरे साथ क्या हुआ. बिकॉज दैट इंटरव्यू वाज रियली वेरी गुड. मुझे लगा था कि हो जाएगा, बट वो मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था कि आप एक्सपेक्टेशंस ज्यादा करते हैं. वो ही मैंने किया. Then I felt and I recovered myself and again I tried so hard for the interviews. And at the starting of June, I selected in IBM and parallelly with 4 other companies. Right. Then I came back to my home. Yeah. So अभी IBM की बात करते हैं. What was the selection process in IBM basically? देखो, if we're talking about the IBM selection, first of all ऐसा बहुत rarely होता है कि IBM बल्क में हायरिंग करे. ठीक है,
दिस इज द मोस्ट लाइक अभी ये जो टाइम चल रहा है इस बार आईबीएम ने बहुत हायरिंग की है और स्टिल हायरिंग हो रही है। तो आईबीएम का एक्चुअली सिलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं और आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। अगर आपका रेज्यूम उनके जॉब के एलिजिबिलिटी के बराबर है तो वो आपको क्या फर्दर प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज आप वहीं से रिजेक्ट हो जाते हो। और लाइक अगर आपको जानना है कि आपका प्रोसीजर कैसे चल रहा है, एक बार आप जब कर लेते हो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, देन आप रेफरेंस नंबर के बाद से फिर से फॉर्म को फिल करते हो। उसके बाद क्या होता है, आप ना अपने ऑनलाइन पोर्टल में आईबीएम की चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली भी प्रोसीजर कितना बड़ा है, कि आप मतलब इंटरव्यू के अंदर हो या नहीं। ऐसा भी होता है कि किसी भी एट द मोमेंट ऑफ टाइम वो आपको आउट कर सकते हैं। मे बी आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है या फिर आपने जो भी असेसमेंट दिए हैं वो ठीक नहीं है। तो मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था, 1-1.5 हफ्ता लगा था, वीक ऑलमोस्ट। उसके बाद मुझे असेसमेंट आए थे, कोडिंग आया था, देन कोडिंग के बाद मुझे गेमिंग आया और गेमिंग के बाद मुझे आया था इंग्लिश असेसमेंट। इंग्लिश और कोडिंग और गेमिंग लाइक ठीक था, थोड़ा सा लेवल है कोडिंग का, बट गेमिंग और जो आपका सेकंड थिंग है इंग्लिश असेसमेंट वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से हेल्प की थी कि किस टाइप के सिनेरियो हैं, किस तरीके के आते हैं। अगर आप ये सब क्लियर कर रहे हो देन यू विल गो टू फॉर इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू में एक्चुअली देखो, अगर आप फ्रेशर हो ना, एज अ फ्रेशर वो आपसे वही चीजें पूछेंगे जो आपने मेंशन किया है। सो आई लिटरली एट द टाइम ऑफ माय इंटरव्यू आई मेड माय रेज्यूमे वेरी वेरी वेल मेंटेन, आई कैन से, कि अगर उसमें से कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले आई विल बी एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बहुत लैग करते हैं, हम रेज्यूम में कुछ भी लिख लेते हैं जस्ट फॉर कि हम शॉर्टलिस्ट हो जाए, बट वी नेवर नो दैट कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ ले। क्योंकि इफ आई रिमेम्बर मैंने अपने उसमें लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स, एंड यू वोंट बिलीव आज तक मुझे किसी भी इंटरव्यू ने उस क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट इन द आईबीएम the person first asked me that question, what do you know about Linux, what are the command from this and this. So that time I realized कि हाँ आपको वही resume में लिखना है जो आपको आता है। So he asked me that type of question, totally like resume based question. Then after that when he felt कि yeah I am very much capable, yeah I give the answer at least 80 to 70% correct. So he asked me some HR questions like why you want to join IBM, is there any chance you will leave IBM and go to the another company, and another question is that ki why only IBM, there are so many, right. And कोई previous internship और like आपने work experience किया उसका कोई ऐसा मुझे experience बताओ when you felt bad और आपको कुछ गलत लगाओ। तो आई लाइक एक्सप्लेन माई जर्नी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, दैट टाइम मैं बहुत होपलेस हो गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि वो आपके रेज्यूम से आपको कोशिश करते हैं फिल्टर करने की कि आपने जो लिखा है एग्जैक्टली आपको हो या नहीं है। तो मेरा एडवाइस सबको ये रहता है, रेज्यूम तब भी शॉर्ट हो चलेगा, इट्स ओके, बट एटलीस्ट वो हो जो आप हो। क्योंकि अगर रेज्यूम से कुछ बोल दिया, पूछ लिया और आप इफ यू आर नॉट एबल टू गिव दैट आंसर, सो लिटरली दैट वाज द मोस्ट लाइक डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ योर इंटरव्यू। एग्जैक्टली। उसके बाद या इंटरव्यू होने के बाद आई वाज वेरी वरीड अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल अब इंटरव्यू में पहुंचने के बाद सबको टेंशन होता है कि वेदर वी विल क्वालिफाई और नॉट। I remember for the 2 or 3 days I eagerly waiting for the result, and every half of hour I just checked through my mail and my IBM portal. So in my portal the status was my application that you are on interview, because मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। और आपके पोर्टल में 5 राउंड होते हैं, फर्स्ट होता है आपका रेज्यूम सिलेक्शन, देन आपका होता है असेसमेंट, देन आपका होता है यू आर ऑन इंटरव्यू, फोर्थ वन इज होता है ऑफर लेटर। और जब आप उसे एक्सेप्ट देन आपका फिफ्थ स्टेटस होता है कांग्रेचुलेशन यू आर ऑन टीम। ओके। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 5 to 6 days ऑफ इंटरव्यू आई रियलाइज कि यार हो नहीं रहा है, मे बी दे विल टेक सम टाइम। और फिर मुझे पता चला कि आईबीएम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, लाइक अभी हायरिंग भी ज्यादा है तो वो मे बी टाइम ले सकते हैं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, एंड आफ्टर 10 days I got the mail from the IBM for the background verification. Background verification में is totally about कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, आपके परसेंटेज क्या है, क्या वो क्राइटेरिया से मीट करते हैं या नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एंड ऐसा हुआ है। तो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक था,
HR called me and she asked me and demanded me for that like internship experience and my job experience certificate and all, and I have submitted everything. अगर आपके पास कोई experience है, so don't be hesitate कि like आपने कुछ भी किया, that doesn't matter कि आपने कुछ भी like experience है. If you have the experience, just show in your resume. It is very important. Right. And after like background verification and all, within 4 days I got my offer letter, and the day when I got my offer letter, that was the most amazing day of my life. I never forget. Yeah, and after 5 days I joined IBM. All right. So like जैसे कि आपने mention किया कि there was coding round, there was gaming round and English. So you kind of prepared for all the 3 rounds from YouTube only. Like YouTube से preparation करना sufficient हो जाता है. Right. Yeah, exactly. मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हम लोग सब सोचते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं. That's not our correct way. If you are good in basics, if you are good enough, so just go to the YouTube and learn. You know, in this time we have a most powerful tool for us. That is Exactly. YouTube and Google. Exactly. We can do whatever we want with the help of YouTube and Google. But हम लोग को आदत होती है सिर्फ क्वेश्चंस पूछने की, रिसर्च करने की नहीं. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन whoever like watching us, just at least if you have any queries, just do Google, do some research on that, Quora and all. There's so many like platforms, they will give you the answer. Exactly. So resume की importance के बारे में कुछ बताओ. Okay, if you're talking about like any interview and also, like no doubt resume is the first and very first thing which you have to clear. Like ऑनलाइन असेसमेंट में आप तब पहुंचोगे जब तक आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन का like कारण ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना होना होता है. तो इफ यू वांट टू टेक योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, so first you have to be very careful about the things which you have mentioned in your resume. Like अगर टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट like मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया था, इफ आई नो द लैंग्वेजेस, so I just categorize all the things. Like I have the database knowledge, so in the database MySQL, SQL, MongoDB. Then programming languages, so C, C++, Java, Python. Then if you have operating system knowledge, then mention Linux and all. तो इंटरव्यूअर को देख के पता चल जाएगा प्रोग्रामिंग में आपको इतनी नॉलेज है एंड डेटाबेस में आपको इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज है. देन आफ्टर दैट यू कैन मेक एन अनदर लाइक अनदर ब्लॉग, और उसमें आप ना मेंशन कर सकते हो. यू नो व्हाट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, आई नो दैट व्हाट इज जावा. यू नो जावा का स्कोप बहुत बड़ा है, तो जावा में मैं किस पोर्शन में स्ट्रांग हूँ, मुझे ये चीज बताना नेसेसरी है. Right. तो दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन दैट आई एम गुड इन oops कॉन्सेप्ट, आई एम गुड इन कलेक्शन, आई एम गुड इन मल्टी थ्रेडिंग. तो उस चीज को अगर हम चीज लाइक अगर वहां पे अच्छे से मेंशन करें, तो इट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट टू द इंटरव्यूअर, और क्वेश्चन वो वहीं से पूछता है. क्योंकि आपको पता है, देखो जावा बहुत बड़ा है. नॉट एवरीवन विल आस्क यू व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, और व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर. एवरीवन नो दैट अ क्लास, ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर. मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें आप किस चीज में अच्छे हो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम गुड इन एसक्यूएल, सो आप ट्रिगर्स में अच्छे हो, आप PL/SQL में अच्छे हो, या आप DQL, DML ऐसे स्टेटमेंट्स में अच्छे हो, क्लॉज में अच्छे हो. तो ये मैटर करता है ना कि आपको वो चीजें काफी क्लैरिफाइड देनी चाहिए. तो मैं सबको यही लाइक सजेस्ट करती हूँ, इफ पॉसिबल तो आप इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप चलती है, आप किसी कंपनी से अप्रोच करो एटलीस्ट 4 to 5 months. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. तो वो सब आप मेंशन कर लो, आपके अचीवमेंट्स हैं. लाइक इन माय पास्ट आई डिड सो मेनी अचीवमेंट्स बिकॉज आई लव टू वर्क सोशली and all, and organize event and so many things. Yeah. तो फिर I know that कि इसका कोई like ज़्यादा use नहीं है, but being a fresher, this is the only time you can showcase your talent. क्योंकि after that you will show that all the experience and all. तो जो भी आपके पास experience है वो सारा आप अपने resume में लिखो. सब कुछ को ना ऐसे समराइज करो, ऐसे शॉर्टलिस्ट करो कि वो अगर इंटरव्यूअर देखे तो उसे पता चल जाए. तो ये सारी चीजें होती है जो आपको करनी पड़ती है. हम यूजुअली ना रेज्यूम को बहुत हल्के में ले लेते हैं. लाइक नाम लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, टेक्निकल दिस इज हॉबी एंड ऑल. यू वोंट बिलीव, मेरे रेज्यूम में हॉबी नाम का कोई सेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को ना मेरा रेज्यूम भर चुका था इससे सारी चीजों से. तो मैंने नहीं लिखा. बट हाँ, अगर आपका रेज्यूम लाइक छोटा है तो आप फिल करो. और वन थिंग इज दैट कि आपका रिज्यूम ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, और बड़ा हो भी गया तो दैट डजंट मैटर, बट उसमें जो आप लिख रहे हो वो सब जेन्युइन होना चाहिए और फिर इट इज यूजफुल होना चाहिए. Okay, so Chandra, tell me like what type of technologies or what type of languages have you prepared for the interview round? मतलब IBM की interview round में किस type की questions पूछा गया था technical part से?
ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कि आपको क्या स्किल्स आनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो नॉट ओनली फॉर द IBM. Okay. If you are going for any interview for the any company, first of all you have to focus about what is the job role, क्योंकि job role के हिसाब से आपको वो लेंगे. So that doesn't matter कि मुझे SQL आता है and I'm going for the BPO, तो उसमें उसका कोई वर्क नहीं है, right? और अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, if you know only HTML CSS, तो उसमें भी वर्क नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपको ये देखना है कि आप किस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर, ठीक है, आपका जॉब रोल देखना जरूरी है. जॉब रोल के हिसाब से आपकी टेक्नोलॉजीज मेंशन होती है, लाइक इफ दे आर seeking for a software engineer or developer, so you should know at least one language, that's it, that can be Java and Python, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है. ओके, एंड इफ यू नो द फ्रेमवर्क, बीइंग अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर मैं बता रही हूँ, अगर आपको फ्रेमवर्क्स आते हैं दैट विल बी एडवांटेज फॉर यू, एंड एटलीस्ट बेसिक आपको कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए. एंड लैंग्वेजेस में आप प्रेफर कर सकते हो जावा एंड पाइथन, और जावा भी कोई एक लैंग्वेज में अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो, इट विल बी ओके फॉर यू. सेकेंड, आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, तो इन द डेटाबेस यू कैन लर्न SQL and MongoDB and anything else which you want to learn. And third thing is that कि अगर आप like वेब टेक्नोलॉजीज में गुड हो, तो HTML CSS is normal and JavaScript you can learn some frameworks like Angular, React. तो ये सारी चीजें हेल्प करती है. बट जैसे मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि अभी जो हायरिंग हुई थी, और एज अ फ्रेशर देखो मैंने भी कुछ चीजें ऐसी लिखी थी कि जिससे पता चल जाए आई हैव मच नॉलेज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी. तो आई एम नॉट सेइंग कि केवल पाइथन पढ़ना इज इम्पोर्टेंट या जावा, क्योंकि आप कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो, कोई एक डेटाबेस लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो, और अगर आप वेब टेक्नोलॉजीज में जाना चाहते हो उसे अच्छे से कर लो. अगर आपको लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में जाना है तो उसको अच्छा कर लो, और अपने रेज्यूम में वही मेंशन करो, और रेज्यूम को आप ना चेंज कर लो उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका जॉब रोल क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, और वो सारी चीजें आप मेंशन कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आपके रेज्यूम के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं. तो वो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी स्किल्स वही होने चाहिए. और करंटली अगर बात करें कि देखो IBM इज हायरिंग फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स, फर्स्ट फॉर द फ्रेशर, सेकंड थिंग इज फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन. तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो यू नो वेरी वेल लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप किस चीज में एक्सपीरियंस हो और व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज आर यूजिंग राइट नाउ. बट इफ यू आर अ फ्रेशर, तो just believe me, it's not important to learn each and everything, because they know that after all you are a fresher. तो वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट हाँ एटलीस्ट आपसे 40 to 50% एक्सपेक्ट करेंगे. तो कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो और उसको अपने रेज्यूम में रख लो, और जो करंट टेक्नोलॉजीज चल रही है अगर आप उसके साथ जाते हो वो तो बेस्ट है. बट इफ यू हैवंट दैट मच टाइम to grasp some another technology, or if you are still stuck with the like Java, OOPS, C++ and all, so that is okay, उसे सही बनाओ. और right now almost all the companies work with like OOPS concept. तो OOPS concept बहुत ज़्यादा important है if you are working with Java. Okay. And Chandra, your opportunity was an off-campus one, right? The opportunity what you got from IBM was an off-campus one. So बहुत बच्चों में ऐसा होता है ना कि like as soon as the on-campus recruitment session gets over, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ होता है ऑन कैंपस में, राइट? सो ऑन कैंपस सेशन अनफॉर्चुनेटली अगर ऑन कैंपस में कोई अनप्लेस्ड रहता भी है, देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इन ऑफ कैंपस, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कैसा करना है. बहुत बच्चे ये चीज़ जानते भी नहीं है कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किस डायरेक्शन में वो ढूंढ सकते हो अपॉर्चुनिटीज़. तो ऑफ कैंपस चेस करने के लिए या फिर ऑफ कैंपस में अप्लाई करने का क्या तरीका है, एंड इन विच डायरेक्शन द फ्रेशर्स शुड वर्क इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब फ्रॉम ऑफ कैंपस? Yeah, definitely this is the most important question. और actually I know that when I was in my graduation, मुझे नहीं पता था कि off campus नाम का भी कुछ होता है. But seriously this is the lack of education and lack of the awareness कि हमें पता नहीं होता है कि जैसे ही आपका पासिंग ईयर आने वाला होता है ना, पास आउट ईयर, उस टाइम पे बल्क में वैकेंसीज आती है, क्योंकि हर कोई फ्रेशर को हायर करता है. स्टिल लाइक Accenture, Capgemini, they are hiring for too much freshers, but वही है कि हमें पहले तो अवेयरनेस नहीं होती है. इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑफ कैंपस राइट, तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जस्ट डू गूगल. आई टोल्ड यू अर्लियर कि गूगल इज द लाइक आंसर फॉर ऑल द क्वेरीज ऑफ द. तो मैंने भी यही किया था. यू नो व्हाट आई डिड in every morning when I was in Bangalore, I just typed like 2020 freshers off campus. Especially I'm from BCA, so I did the searching of like 2020 BCA off campus hiring.
तो उससे क्या होता था, जो भी आपके ऑफ कैंपस होते थे बीसी के सारे आ जाते थे, क्योंकि लाइक वी आर द यूट्यूबर, देयर आर सो मेनी ब्लॉगर्स इन द गूगल who post the links literally. Even though if you want to like grasp that link na, just do Google, तुम्हें मिल जाएगा. Second thing, go in YouTube and search the same thing. Like personally मैंने ये किया है, उस लिंक पे जाओ. If you want to like आप सर्च करो YouTube पे, अगर आप उस चीज को पढ़ना चाहते हो जस्ट रीड आउट, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है मतलब कुछ भी पढ़ने की. डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई करो लिंक पे. और डू दिस एक्टिविटी डेली. डेली मीन्स कि डेली. गूगल हो गया आपका, फिर देन फेसबुक है बट नॉट जेन्युइन. आई एम नॉट कंसिडरिंग फेसबुक हेयर, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था बट दैट वाज नॉट जेन्युइन. So you can do for Google and YouTube, and there are so many groups which is found from the Bangalore, and I am also be a admin in a group, and I create a Telegram group where I posted every day at least 5 to 6 drives in a day to the people who want like off campus. So you also can join, and you can also give the link on the description. They people will like go and visit that group. I'll do that. कर सकते हो. And if you have any link from the Bangalore, तो बैंगलोर में you won't believe there are so many groups in WhatsApp as well, तो आप वहां से भी लिंक्स ले सकते हो. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें, अगर आप ये भी नहीं करते तो सिंपली डू गूगल. लिटरली you won't believe, but do Google, you will get all the links. एंड अकॉर्डिंग टू मी, अभी मैंने देखा जब से मैं जनवरी से बैंगलोर गई थी अभी तक, स्टिल दे आर हायरिंग. एसेंशियल स्टिल दे आर हायरिंग. कैपजेमिनी स्टिल दे आर हायरिंग. तो मोस्टली क्या होता है ना, 6 महीने में हायरिंग होती है. और इवन दो हर महीने में हायरिंग होती है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है. जस्ट इम्पोर्टेंट इसकी आपको अवेयर होना पड़ता है कि आपको कब चेक करना है. नहीं तो फॉर मी एवरी डे यू शुड एटलीस्ट चेक वन. In this regard, LinkedIn का क्या importance रहता है? How to use a LinkedIn profile or this particular platform to reach to the recruiters? Yeah, exactly. Yeah, I forget to mention LinkedIn. Actually, LinkedIn we can say the proper as a is a proper group for all the ITs, for all the job professional and corporate life. क्योंकि अगर आप LinkedIn में हो, if you are following someone, so you will get so many knowledge. I'm not talking about the reference, I'm not talking about the job. I'm talking about you will get so many knowledge and all what is going on the industry. Or most probably you won't believe कि LinkedIn में भी ना jobs के reference रहते हैं, jobs की links रहती हैं, original links रहती हैं. तो आप वहाँ से भी apply कर सकते हो. One of my friend recently joined IBM after me, and he got that link from the LinkedIn. So LinkedIn से मिला. So it is really very important to make a good connection in LinkedIn. क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप नए होते हो आपको पता नहीं होता किससे कनेक्शन करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ना शुरू करना पड़ता है. You know what is the most toughest part of your life is to beginning, to the start. Exactly. अगर आईटी में भी आपको being a fresher आपको घुसना थोड़ा सा मुश्किल होता है. After that you have experience, you can crack any interview, उसमें इशू नहीं है. तो आपको ना स्टार्ट करना पड़ता है. तो for right now, I just really want to share one thing to each and everyone who are here. Just make a good contact in LinkedIn, and LinkedIn का प्रोफाइल well maintain करो. क्योंकि LinkedIn में लोग आपको देखते हैं कि आप में क्या skills है, technologies है. If you are having good skills and technologies, they will refer you automatically. कभी तो ऐसा तो आपको की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली लिंक्डइन से शो हो जाता है कि आप में सारी क्वालिटीज हैं, तो रिक्रूटर आपके पास आता है. तो इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू बी अ वर्क इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, just first go in the LinkedIn and change your profile and do a very good profile. Change your profile picture first. Make a proper formal email. Don't be anything mail जो सही ना हो. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है. छोटी छोटी चीजों से ही ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर पाती हूँ. Exactly. So Chandra, before wrapping it up, I wanted to ask आपने उत्तराखंड से स्टार्ट किया था and now आप बेंगलोर में हो. So ये जो जर्नी है, you must be the motivation to many small town girls, ठीक है? इतने struggles के बाद, तो वो चीज कैसा लगता है आपको? That time was difficult, but right now I'm very motivated. I'm very I'm proud of myself actually. Seriously to say, I'm proud of myself. क्योंकि एटलीस्ट मैंने उस दिन वो करेज किया. यू वोंट बिलीव कि आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मुझे बैंगलोर जाना है एंड आई हैव टू डू समथिंग एंड रैंडमली आई टॉक टू माय फादर पापा मुझे जाना है
एंड आई वांट टू डू दैट कोर्स एंड ऑल, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती थी मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जॉब मिलना भी मुश्किल था बैंगलोर में, और फर्स्ट ऑफ ऑल जब कुछ नहीं जानते हो। तो मैं सच बताऊं, फ्रॉम लाइक इन द बैक एंड ऑफ माई लाइफ, दिस फ्रंट एंड सबको दिखता है, लाइक इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज वेल, सब सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड की तारीफ करते हैं, nobody knows who is the back end for my life, for my journey, my everything. My back end is my father. अगर वो उस दिन हाँ नहीं बोलते, सीरियसली टू से बीइंग अ गर्ल बहुत मुश्किल होता है कि आपको अकेले बाहर भेज दे। इवन मेरे पापा ने मुझे ये भी नहीं बोला था, आई रिमेम्बर, कि मैं आपको छोड़ने आता हूँ। ही वाज बी लाइक कि आप चले जाना, ठीक है। फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, फर्स्ट वी मेक अ प्लान कि कितना खर्चा होगा, क्या क्या होगा, सो वी अप्रोप्रिएट आवर लाइक कि इतना इतना हो जाएगा। माय फादर वाज लाइक ओके गो, like he can do anything if I want to study seriously, and he is the like most important part of my life, my mother as well. But जो courage मेरे पापा ने मुझे help किया, that was really helpful. और I remember one thing जो मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोली थी कि बेटा अगर 10,000 से भी आपको शुरू करना पड़े तो just go for that. कभी ये मत सोचना कि आपको कम पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इस वाली लेन पे ना आपको कम से ही शुरू करना पड़ता है। बट मेरे को ये था कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, बट आई वांट समथिंग बेटर जो मैं डिजर्व करती हूँ। तो मैंने काफी चीजें छोड़ी, काफी कुछ करा। इतना सारा टैकल करने के बाद बैंगलोर में आई वाज डम दैट टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई स्टॉप टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई स्टॉप टॉकिंग टू माई फैमिली इवन, और कुछ नहीं हो रहा था। लाइक रूटीन भी लाइक खराब हो गया था, रात भर जगना, दिन भर सोना, खाना नहीं खाना, एंड सो मैनी थिंग। लाइक मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस टाइम पे। तो बट नाउ अगर मैं अपने बैक मेमोरीज को देखती हूँ तो मुझे नहीं पता वो सब कैसे हुआ। ऑफ कोर्स ही बात है, आपका हार्डवर्क वर्क करता है, बट एक टाइम पता ऐसा आ गया था व्हेन आई वाज कि अब नहीं होगा मुझसे, एंड आई वाज स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि कभी भी लाइक मुझे वहां लगता था कि वहां कोई अपना नहीं था। आई हैव माय रूममेट देयर, तो शी वाज वेरी गुड and she was the same phase that which I felt that time. तो वो भी like अपने के लिए ही लड़ रही थी, like job के लिए। तो she gives me an inspiration, चंद्रा जब तक job नहीं होगा don't go for your home, and I pledge that कि I will come back home after getting a job, that's it, otherwise I will not come. अभी वो चाहे कितना भी टाइम लगे, like 1 year 2 year 3 year, I will not come. और जिस दिन मैंने टिकट की उससे एक दिन पहले ही मेरा कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था, एंड बस ऑफर लेटर के लिए उन्होंने मुझे बोल दिया था कि हम 2 दिन में देंगे। तो दैट टाइम आई फेल्ट कि ओके मैं घर चले जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले थी, मेरी रूममेट का भी कैपजेमिनी में हुआ था। तो सच बताऊं तो वो स्टोरी बहुत टफ है, और मुझे कभी कुछ बुरा लगता था या कुछ भी फील होता था, वट एवर आई फेल्ट आई जस्ट पोस्ट ऑन यूट्यूब माई चैनल। तो हाँ, अभी वो पुरानी वीडियोस को मैं देखती हूँ, आई वॉज वेरी स्टूपिड बट आई डिड, बट इट्स ओके, दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना, आपको सक्सेस का कभी अंदाजा नहीं होगा। सो दैट वाज अ रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ, एंड आई फेल्ट गुड कि अच्छा हुआ कि मुझे कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिला, एंड जो कंपनी से मुझे मिला मैंने उसमें नहीं किया, या मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। और ठीक है, मेरे फ्रेंड्स लोग का मुझसे पहले हो गया था प्लेसमेंट, बट आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ, आई थिंक आई एम बेटर देन देयर पोजीशन। यस आई एम, एंड आई एम नॉट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट and I'm happy to achieve this achievement, because जब सारे बच्चे जॉब कर रहे थे, जब सबको प्लेसमेंट मिल गया था, that time I left my placements, I left my job, and I start working from zero. तो hard work pays off, that's definitely work, but you have to do, you have that courage कि हाँ हो जाएगा। Yeah, that's all. Thank you so much Chandra for coming to our channel and sharing your experience, your journey, and I must say it was my pleasure hosting you. एंड आई होप जो लोग वीडियो को एंड तक देखे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपके जर्नी को सुन के बहुत ही मोटिवेट हुए होंगे। एंड थैंक्स अगेन फॉर कमिंग टू प्लेसमेंट बडीज। आई होप हम लोग आगे भी ऐसे ही कोलैबोरेट करते रहेंगे। और गाइस, चंद्रा बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट बनाती है अपने यूट्यूब चैनल में। हर चैनल्स लिंक विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ गो एंड वॉच हर चैनल। एंड चंद्रा, थैंक्स अगेन फॉर कमिंग टू प्लेसमेंट बडीज। Thank you so much, Sally.